Hello everyone, now again welcome in video lecture class. Now today I am going to talk about the topic that is multiple intelligence. मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ मल्टीपल इंटेलिजेंस के यानी बहुबुद्धि की जो सिद्धांत हैं उसमें पूर्व के वीडियो में मैंने 2 पॉइंट की चर्चा की थी। आज मैं उसके बचे हुए 7 पॉइंट की चर्चा करूँगा जो कि गार्नर साहब की बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत है पॉइंट। अगर बहुबुद्धि सिद्धांत की बात की जाए तो अब तक जो बात मैंने की है इससे ये चीज़ें तो निश्चित ही स्पष्ट हुई हैं कि बुद्धि स्वयं ही जनरेट होती है मनुष्य में, वह जन्मजात नहीं होती है। बुद्धि पारस्परिक भी हो सकती है या इंट्रापर्सनल जिसको बोलते हैं अंतर व्यक्तित्व भी हो सकती है। बुद्धि का आधार जो है वह अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों के अनुसार हो सकता है। उस बुद्धि को एक जगह समायोजित या एक ही क्षेत्र में नहीं किया जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है और वो अपनी एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों में जा सकते हैं। जो मनुष्य जिस क्षेत्र में अपने बुद्धि का प्रयोग सर्वाधिक करता है उसी क्षेत्र में उसकी जो भूमिका बढ़ जाती है और उसी क्षेत्र में वो अपने कैरियर के रूप में संभावित चीज़ों को चुन सकता है और उस ओर वो अपने नाम और अपने बुद्धि का प्रयोग करके अपने नाम को सफल कर सकता है। तात्पर्य स्पष्ट है कि आप अपनी क्षमता का प्रयोग जिस क्षेत्र में करेंगे सफलता आपको उसी क्षेत्र में मिलेगी। मैं अब जो बचे हुए ये जो 7 पॉइंट है उसको मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ। नाउ फर्स्ट डिस्क्राइब इन English version multiple intelligences. The 9 intelligences included in Garner's theory are previously I have also discussed, that is first and second. So today I will start the third point, spatial intelligence. Spatial intelligence is the brain's ability to perceive and interpret visual stimuli. In other words, it's how our mind processes what we see. Although not very recognized, spatial intelligence is very important in the arts and in everyday life. Spatial intelligence is important because we visually perceive and interpret the world around us is an important quality to have. Next point, in the arts, the ability to transfer a vision to a painting, a sculpture or film is a key quality. Careers such as architecture require a person to transfer a vision of a structure into a blueprint. Spatial intelligence is even used by average people to remember small but important facts like how to travel from your school to your house. Everyone uses spatial intelligence in the everyday life. Possible careers: architect, cartographer, map maker. Also you have to say drafter, engineer, fine artist, graphic designer, fashion designer, etc. Now number 4, body kinesthetic intelligence. It is expertise in using one's whole body to express idea and feelings. Example: acting, dancing, sports, and using body language. It is the ability to use one's hand to produce or transform things. Examples: sculpting, clay, and hands-on learning. Possible careers: actor, athlete, carpenter, choreographer, creates and arrange dances, craftsman, dancer, farmer, forest ranger, etc. Now number 5th, musical intelligence. Being musically intelligent means that you are able to distinguish the sounds around you and that you have the ability to make your own melodies. Even if you are only singing a song or making music, you are using your musical intelligence. If you are musically intelligent, you are able to all kinds of musical forms. Possible career: songwriter, performing musician, piano tuners, singer, musical theatre actor, actress, studio engineer, instrument manager.
Now number 6, interpersonal intelligence. Interpersonal intelligence, in bracket people smart, is understanding other people. It's an ability we all need but is at premium if you are a teacher, clinician, salesperson or a politician. Anybody who deals with other people has to be skilled in the interpersonal spheres. Possible career: public relations, salesperson, sociologist, therapist, teacher, travel agent. Now 7 number, intrapersonal intelligence. Intrapersonal intelligence is self-knowledge and the ability to act adaptively on the basis of that knowledge. This intelligence includes having an accurate picture of oneself, one's strength and weakness, awareness of inner moods, intentions, motivations, temperaments and desires, and the capacity for self-discipline, self-understanding and self-esteem. Essentially, it's how well you know yourself. Possible careers: entrepreneur, program planner, psychiatrist, psychology teacher, researcher, etc. Now number 8, naturalistic intelligence. Naturalist intelligence designates the human ability to discriminate among living things, plants, animals, as well as sensitivity to other features of the natural world, clouds, rock, configurations. Naturalistic intelligence is the ability to understand, relate to, categorize, classify, comprehend and explain the things encountered in the world of nature. People who exhibit developed naturalistic intelligence include farmers, rankers, hunters, gardeners, botanists, geologists, etc. Now 9 number, existential intelligence. Individuals who exhibit the proclivity to pose and ponder questions about life, death and ultimate realities. Existential intelligence is sensitivity and capacity to tackle deep questions about human existence. People who exhibit developed existential intelligence include theologians, philosophers, spiritual advisors. अब मैं इन सभी चीज़ों को हिंदी में थोड़ा स्पष्ट कर दूँ। गार्डनर के सिद्धांत में शामिल है 9 बुद्धि मुख्य रूप से, 2 का मैं चर्चा पहले कर चुका हूँ, इसलिए आज मैं तीसरे नंबर से शुरू कर रहा हूँ। नंबर 3 है स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि मस्तिष्क के दृश्य उत्तेजनाओं को देखने और व्याख्या करने की क्षमता है। दूसरे शब्दों में यह हमारे दिमाग की प्रक्रिया है कि हम क्या देखते हैं। हालांकि बहुत मान्यता नहीं है कि कला और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में स्थानिक बुद्धि बहुत महत्वपूर्ण है। स्थानिक बुद्धि महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अपने आसपास की दुनिया को नेत्रहीन रूप से अनुभव करते हैं और व्याख्या करते हैं। कला एक महत्वपूर्ण गुण है। पेंटिंग, मूर्ति कला या फिल्म के लिए एक दृष्टि को स्थानांतरित करने की क्षमता एक महत्वपूर्ण गुण है। वास्तुकला जैसे कि एक व्यक्ति को एक दृष्टि को स्थानांतरित करने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। अपने स्कूल से अपने घर तक कैसे यात्रा करें, एक में एक संरचना, छोटे लेकिन महत्वपूर्ण तथ्यों को याद रखने के लिए औसत लोगों द्वारा समसामयिक बुद्धि का उपयोग किया जाता है। हर कोई रोज़मर्रा की ज़िंदगी में स्थानिक बुद्धिमत्ता का उपयोग करता है। संभावित करियर: आर्किटेक्ट, कार्टोग्राफर, मैप मेकर जिसको कहते हैं, ड्रेपर, इंजीनियर, फाइन आर्टिस्ट, ग्राफिक डिजाइनर, फैशन डिजाइनर, etc. शारीरिक गतिपरक बुद्धि: यह विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किसी के पूरे शरीर का उपयोग करने में विशेषज्ञता है। उदाहरण: अभिनय, नृत्य, खेल और बॉडी लैंग्वेज यानी शारीरिक भाषा आपकी का उपयोग करना। चीज़ों को उत्पन्न करना या बदलने के लिए किसी के हाथों का उपयोग करने की क्षमता है। उदाहरण: मूर्तिकला, मिट्टी और हाथों पर सीखने के लिए। संभावित कैरियर जैसे अभिनेता, एथलीट, बढ़ई, कोरियोग्राफर, नृत्य का निर्माण करना या व्यवस्था करता है। शिल्पकार, नर्तक, किसान, वन रेंजर यानी फॉरेस्ट में जो रहते हैं आदि।
सांगीतिक बुद्धि जिसको कहते हैं, बुद्धिमान होने का मतलब है अर्थात अभिप्राय है आप अपने आसपास की ध्वनियों को भेद पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं कि नहीं, आपके पास अपनी धुन बनाने की क्षमता है या नहीं। यहाँ तक कि अगर आप केवल एक गीत गा रहे हैं या संगीत बना रहे हैं तो आप अपनी संगीत बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं या नहीं। यदि आप धार्मिक रूप से बुद्धिमान हैं तो आप निम्न सक्षम हैं: संगीत के सभी प्रकार संभावित करियर जैसे कि सॉन्ग राइटर यानी संगीत लिखने वाला व्यक्ति, परफॉर्मिंग म्यूजिशियन जो खासकर संगीत पर अपनी कला को दिखाता हो, पियानो बजाने वाला, सिंगर यानी संगीतकार, म्यूजिकल थिएटर एक्टर जो कि एक्टिंग करते हैं यानी अपनी कला दिखाते हैं, एक्टर यानी हीरो या हीरोइन जो हैं, उसके बाद स्टूडियो इंजीनियर और इंस्ट्रूमेंटर मैनेजर जो इंस्ट्रूमेंट संभालते हैं यानी उपकरण को जो देखते हैं उसकी व्यवस्था करते हैं। नेक्स्ट, पारस्परिक बुद्धिमत्ता नंबर 6। पारस्परिक बुद्धिमत्ता यानी खासकर स्मार्ट लोगों को ध्यान में रख किया गया है, अन्य लोगों को समझ रहा है। यह एक ऐसी क्षमता है जिसको हम सभी को आवश्यकता है, लेकिन यदि आप एक शिक्षक, चिकित्सक, विक्रेता या राजनीतिज्ञ हैं तो एक प्रीमियर पर हैं। जो कोई भी अन्य लोगों यानी प्रीमियम का मतलब हुआ सबसे टॉप पोजीशन में है। जो कोई भी अन्य लोगों के साथ व्यवहार करता है उसे पारस्परिक क्षेत्र में कुशल होना पड़ता है। संभावित करियर्स के जनसंपर्क, विक्रेता, समाजशास्त्री, चिकित्सक, शिक्षक, ट्रैवल एजेंट यानी आप दूसरे को जो समझा सके, बता सकें। नाउ नंबर 7, अंतराव्यक्तित्व बौद्धिकता। आत्मनिरीक्षण बुद्धिमत्ता उस ज्ञान के आधार पर अनुकूल रूप से कार्य करने की क्षमता और आत्मज्ञान है। इस बुद्धिमत्ता में आंतरिक मनोदशाओं, इरादों, प्रेरणाओं, स्वभाव और इच्छाओं के बारे में जागरूकता और आत्म अनुशासन, आत्मसमझ और आत्मसम्मान के लिए क्षमता, स्वयं की सटीक तस्वीर, किसी की ताकत और कमजोरियां शामिल हैं। अनिवार्य रूप से यह आप खुद को कितनी अच्छी तरह जानते हैं। संभावित करियर: उद्यमी, कार्यक्रम योजनाकार, मनोचिकित्सक, मनोविज्ञान शिक्षक, शोधकर्ता आदि। नंबर 8, प्राकृतिक बुद्धि। प्रकृतिवादी बुद्धि जीवित चीज़ों, पौधों, जानवरों के साथ साथ प्राकृतिक दुनिया, बादलों, रॉक कन्फिगरेशन यानी बादलों के आधार पर जो पत्थर जो कि होते हैं उनकी जो प्रकृति रूप से चेंजेस होते हैं, व्यवस्थाएं जो परिवर्तित होती हैं, उसके लिए बात की गई है कि अन्य विशेषताओं के प्रति संवेदनशीलता के बीच भेदभाव करने की मानवीय क्षमता को डिजाइन करती है। अप्राकृतिक बुद्धि समझने, संबंधित, वर्गीकृत समझने की क्षमता है और प्रकृति की दुनिया में सामने आई चीज़ों की व्याख्या करें। जो लोग विकसित प्राकृतिक बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करते हैं उनमें शामिल है किसान, खेत, शिकारी, माली, वनस्पति विज्ञानी, भूवैज्ञानिक आदि। नंबर 9, अस्तित्वगत बुद्धि। ऐसे व्यक्ति जो जीवन, मृत्यु और अंतिम वास्तविकताओं के बारे में प्रश्न के लिए व्यापकता का प्रदर्शन करते हैं। अस्तित्वगत बुद्धिमत्ता संवेदनशीलता और मानव अस्तित्व के बारे में गहन सवालों से निपटने की क्षमता है। विकसित अस्तित्व संबंधी प्रदर्शन करने वाले लोगों में शामिल है धर्म विज्ञानी, दार्शनिक, आध्यात्मिक सलाहकार। इस प्रकार से मैंने 9 बुद्धि के बारे में स्पष्ट किया। Now on the basis of above discussion, it indicates that the especially 9 principles of Gardner-Howard theory, especially it is the guidelines, better you say that, instruction and the way how you have to develop your sense and how you have to set your ideology and how you have to convey your society to performance and the newer future children। कहने का तात्पर्य ये है कि इस थ्योरी के जो 9 सिद्धांत हैं, इस प्रिंसिपल जो 9 बताए गए हैं बहुबुद्धि के, ये एक आधार है, ये एक तरीका है। साथ ही आने वाले जो बच्चे जो फ्यूचर हैं उनके लिए एक स्थिति हो सकती है जिससे कि वो समझें, क्षेत्र को चयन करें और उसी दिशा में अग्रसर हों तो ज़्यादा फ़ायदामंद हो सकते हैं और ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हावर्ड गार्डनर साहब के जो सिद्धांत हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस के, ये इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, ये उपयोगी है। साथ ही साथ ये छात्रों के लिए और शिक्षकों के लिए कि कैसे आप किसी का मार्गदर्शन करें, कैसे उसे सलाह दें, किस क्षेत्र में जाएं, उसकी बुद्धि के अनुसार ये फ़ायदा हो सकता है। तो अगले क्लास में
अब शिक्षा के क्षेत्र में इसकी उपयोगिता और कहाँ कहाँ पर है, किस प्रकार से है, उन सभी चीज़ों के बारे में मैं अगले क्लास में विस्तार से बात करूँगा। तो अब मिलते हैं अगले क्लास में एक और वीडियो के साथ। उसके पहले मैं आपसे एक सलाह आपको देना चाहूँगा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे ही यूट्यूब में ये वीडियो अपलोड होगा आपको इमीडिएट यानी तुरंत आपको उपलब्ध होगा। तो अब आगे की वीडियो के लिए और अगले क्लास के लिए मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।